Good morning, everyone. Today's topic is angles and their measurements of class 5 in mathematics. At first, formation of angle. AOB. When two rays OA and OB with the same initial point is called angle. Where OA and OB is 2 are two rays and point O is a vertex. Let angle AOB is theta. Now types of angles. First, types of angle. First, acute angle. An angle which measure more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. AOB theta, where value of theta is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. ये फर्स्ट हो गया acute angle. Second, right angle. An angle whose measure 90 degree. Angle AOB theta, theta equal to 90 degree. Third, an angle whose measure greater than 90 degree but less than 180. Value of theta more than 90 degree but less than 180 degree. 4. Straight angle. An angle which measure 180 degree is called a straight angle. Angle AOB equal to 180 degree. Fifth, an angle which more than 180 degree but less than 360 degree. Value of theta greater than 180 but less than 360. 6. Complete angle. An angle whose
measure 360 degree. Angle AOA equal to 360. Now, interior and exterior of an angle. Formation of angle AOB. All points which the inside the angle, point P, Q is the interior of angle, and all points which lie the outside of the triangle, outside of the angle, sorry, triangle nahi, angle, point R, yes, point R and yes is the exterior of angle. And third, each point, each of the arms of angle T, U on the angle, point A, T, U, U and B on the angle. Now solve the exercise 13A. Exercise 13A. Question number first. Name 3 examples of angles from your daily life. 3 examples of angle. First, a pair of compasses. Second, 2 arms of divider. And third, क्लॉक देखे होंगे, क्लॉक में आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी एंगल फॉर्मेशन ऑफ बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तो इसमें हम लिख सकते हैं थर्ड में द हैंड्स of a clock. यानी एक क्लॉक का हैंड्स, अब हैंड में आता है मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स और एक सेकेंड हैंड्स, तो इसके बीच एंगल का फॉर्मेशन होगा. Question number 2. Name the vertex and the arms of angle ABC. Angle ABC. Name the vertex. Vertex B and arms, 2 arms हो जाएगा इसमें, BA and BC, 2 arms हो गए. Question number 3. How many angles are formed in each of the figure? इसमें 3 फिगर दिए हुए हैं. फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर. फर्स्ट फिगर, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट फिगर ABC
ए बी सी डी, ए बी सी डी और वी डी डायगोनल को ज्वाइन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल द एंगल्स, इसमें सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ एंगल्स कितने हैं। तो इसमें हो जाएगा 3 एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी एंड एंगल बी ए सी, 3 एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 का 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल 4, इसको नेमली भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो एंगल इसमें 4 हो जाएगा। फर्स्ट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी डी ए और एंगल ए डी सी, 4 एंगल। 3 का थर्ड, इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 7 हो गया और 8, नेमली 8 हो गया यहाँ। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एंगल हो गया, बी से चलते हैं, पॉइंट बी को लेते हैं, बी सी डी, एंगल बी सी डी। फिर एंगल लेते हैं डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। एक और ए बी डी हो गया, ए बी डी एंगल हो गया, ए बी सी एंगल हो गया, ए बी सी, सी डी ए डी बी हो गया, ए डी सी ए डी बी हो गया। फिर बी ए डी, एंगल एक हो जाएगा बी ए डी, टोटल 8 हो गया। तो इस तरह से हम टोटल एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसको क्लीन करते हैं। Question number 4. In the given figure, list the point which, फिगर दिया हुआ है ए ओ बी, क्यू एस, पी आर एन टी। फर्स्ट है 4 का फर्स्ट, आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इंटीरियर में पॉइंट क्यू एंड एस आया है, तो फर्स्ट में हो जाएगा क्यू एंड एस। सेकेंड, are in the exterior of angle AOB,
आप लोगों को बतलाया गया था ऑल पॉइंट्स विच आउटसाइड ऑफ द एंगल, तो एंगल का आउटसाइड में पॉइंट आर और पी आ रहा है, पॉइंट पी एंड आर। थर्ड, लाई ऑन एंगल ए ओ बी, ए ओ बी पर कौन कौन से पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट ए, एन, ओ, टी एंड बी, ए, एन, ओ, टी एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, see the adjacent figure and state which of the following statements are true and which are false. Figure A O B C D. सॉरी, यहाँ सी है और यहाँ डी है। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC। अब एंगल AOC, एंगल AOC के इंटीरियर में पॉइंट सी नहीं आ रहा है, तो यह क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड, पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOD, AOD इंटीरियर आ रहा है, तो ये हो गया ट्रू। इस प्रकार से हमें देखना है, पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC, AOC में पॉइंट इंटीरियर में डी नहीं आ रहा है, इसलिए थर्ड का फॉल्स। फोर्थ, पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ AOD, AOD पॉइंट बी, ऑल पॉइंट बतलाया गया था कि ऑल पॉइंट जो है विच आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द एंगल, तो एंगल AOD आउटसाइड पॉइंट भी है, इसलिए हो गया ट्रू। 5, पॉइंट सी लाई ऑन एंगल AOB, AOB सी उसी पर है तो नहीं है, तो 5 का भी हो गया फॉल्स। तो इस तरह से हमें यहाँ इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम। एंगल का नेम लिखना है, दूसरा नेम। ये फिगर दिया हुआ है AB CD और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा EF, इंटरसेक्ट एट P and Q, P and Q। नेम 1 2 3। तो एंगल 1 का अदर एंगल का नेम लिखना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल EPB, एंगल 2 एंगल PQC, और एंगल थर्ड FQD। इस तरह से अदर नेम। एक्सरसाइज 13B, एक्सरसाइज 13B, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स। इसमें एंगल दिया हुआ है आपका AOB, सेकेंड फिगर, फर्स्ट का फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर COD, थर्ड फिगर
FOE, ये थर्ड फिगर था। फोर्थ POQ, 5 फिगर। HG और 6 P। अब इसमें नेम देना है। और स्टार्टिंग पॉइंट में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एंगल में। तो ये एंगल फर्स्ट फिगर में मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, इसलिए यह क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल आंसर हो गया। 8 सेकेंड में 90 डिग्री के बराबर है, राइट एंगल। थर्ड इक्वल टू 180, स्ट्रेट। थर्ड में मोर देन 180 बट लेस देन 360, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट। एक्यूट एंगल। और ये हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासिफाई करना है एंगल का। हुच मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। फर्स्ट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट। तो ये हो गया एक्यूट एंगल। सेकेंड 91 डिग्री मोर देन 90 बट लेस देन 180, ऑब्ट्यूज। तो इस तरह से आपको बतलाया गया है टोटल का डिफिनेशन, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन वन राइट एंगल? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो फर्स्ट जो है 3 का फर्स्ट वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब रहेगा टू राइट एंगल, सेकेंड है टू राइट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से 3 राइट एंगल 3 इंटू 90 डिग्री, 4 राइट एंगल 4 इंटू 90 डिग्री। फिर है फिफ्थ में 2/3 राइट एंगल, तो 2/3 इंटू 90 डिग्री, तो 2/3 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हम इसे डिग्री में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम क्लीन करते हैं। Question number 4, how many degree are there in a angle between the hour hand and minute hand of a clock? एक क्लॉक आपने देखे होंगे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो इसमें 3 ओ क्लॉक, ये हो गया आवर हैंड, ये हो गया मिनट हैंड। तो यहां पर
एंगल का फॉर्मेशन जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 6 o'clock, जब आवर हैंड 12, 6, 3, 9 आवर हैंड, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन गया 180, सेकेंड का हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग ओनली ए रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। तो रूलर आपके पास होगा, तो उस तरह से एक एक्यूट एंगल हो गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, एक स्ट्रेट एंगल बनाना है। इस प्रकार से रूलर की सहायता से हेल्प से आप बना सकते हैं। थर्ड में कोई एक्सरसाइज 13C, मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट द मेजर। अब इस तरह से एक हमने प्रोटेक्टर ले लिया, अब एंगल इसका मेजर करना है, तो इसका मिडल पॉइंट जो है उसको पॉइंट O पर हम रिप्लेस करेंगे और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन इस पर होना चाहिए। अब देखेंगे हम यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 60 है, तो एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप मेजर कर सकते हैं। सेकेंड को कंस्ट्रक्ट करना है 25, तो एट फर्स्ट रूलर से हम एक लाइन ले लेंगे, अब इस पॉइंट को हम O मान लेंगे। अब यहां पर इस तरह से हमने एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद जितना है 25, 10, 20, 25 पॉइंट दे देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो एंगल ये हो जाएगा A मान लेंगे O और ये हो गया B, तो एंगल AOB इक्वल टू 25। इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेना है, इसमें टोटल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन 3 में भी एक एंगल फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसको एक एंगल DEF बनाना है जिसका मेजर सेम होना है। लास्ट एक्सरसाइज 13D का फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल ये सब बताया गया है। Where does the vertex of an angle lie? अब क्या होगा, जैसे एक एंगल जो है का फॉर्मेशन हुआ AOB, तो पॉइंट O जो है, द वर्टिसेस ऑफ एन एंगल लाई, ये पॉइंट O जो है ऑन द एंगल, इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑन द एंगल। यही क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसका मल्टीपल चॉइस है, इसका C हो जाएगा। सेकेंड नंबर, द फिगर फॉर्मेड बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड, फॉर बतलाए थे एंगल का डेफिनेशन, व्हेन टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल हो जाएगा सेकेंड का आंसर। थर्ड, एन एंगल मेजर 180, लोगों को बतलाया गया था डेफिनेशन कि एन एंगल हुज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी 3 का भी C हो जाएगा। फोर्थ, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड, को अभी बतलाया गया था कि ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये एंगल हो जाएगा राइट एंगल, राइट एंगल, यानी 4 का हो जाएगा B।
एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री, 91, तो यह ग्रेटर देन 90, ये एंगल जो होगा 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होगा। तो ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसका अर्थ हो गया कि 90 मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया B5 का B। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन इसी टाइप्स का है। थैंक्स।